Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the kinds of the ecosystem or what are the different types of the ecosystem. Now first we know जो earth है that is a one big ecosystem. जो total दो biosphere है earth वो क्या act करता है as a one big ecosystem. क्योंकि जो अर्थ में है एंड जो डिफरेंट पैचेस है उनको फाइनली फॉर एग्जांपल अगर हम कंबाइन करेंगे जितने भी टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक पोलर जो भी कोई इकोसिस्टम्स है फाइनली क्या होता है एज अ वन ऑन द ग्लोबल स्केल हम देखेंगे दिस अर्थ इज अ वन बिग नेचुरल इको system what is actually it is a one big ecosystem, but to make our studies easier we have fragmented this into very different patches. ठीक है, into different ecosystems में हमने divide इसलिए किया है. this for example यहाँ पे कोई dry barren land this is a one ecosystem, this is a lush green vegetation, this is one ecosystem, this is your यहाँ पे for example ये आपके oceans है, ठीक है, water में here is it will be a different ecosystem. ये हमने किस लिए किया है, but what is in the reality this is a one big ecosystem. But अब जितने भी ये different ecosystems across the globe on the earth, these may be categorized as follows. One is your total जितने भी types of ecosystems है उनको दो broad categories में divide किया गया है. One is the natural ecosystem and another is your this artificial or the man-engineered ecosystems. So what is the natural ecosystem? Simply natural means जो naturally operate हो रहा है without any major जो भी intervention या this interference by the man, that is very least, or there is no जो भी जैसे भी sustain हो रहा है operate हो रहा है there is no interference by the man. So depending based on the particular kind अब किस habitat में ecosystem है exist हो रहा है, these are further categorized as the terrestrial and the aquatic ecosystem. This is terrestrial ecosystem है, this is the next is your aquatic ecosystem. This means जो naturally for example हमने क्या लिया terrestrial में आता है आपके land पे जो ecosystems, for example forest ecosystem is there, grassland ecosystem, desert is there, ठीक है. But what is this? जो forest है for example वो खुद exist कर रहा है, ठीक है, वहाँ जो vegetation grow हो रही है, जो animal populations है या क्या वहाँ weeds है जो या bacterial populations है, जो भी infectious diseases है, ना तो हम जाकर वहाँ जंगल से रिमूव कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हम कई फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं ताकि आपके फॉरेस्ट है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाए, दैट विल शो द मोर production. So that is of its own operating there, that is of its own existing there, ठीक है. Same is with the case of the desert. So there is no interference. यानी for example that it's not about this positive or this adverse impact human is causing, मगर ये जो इकोसिस्टम यहाँ पे बन रहा है, जो ये फॉरेस्ट है वो कैसे सर्वाइव हो, वो कैसे स्टार्ट हो गया, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं, वो खुद कर रहा है इंटरेक्ट. वहाँ जो लिविंग स्पीशीज है टुगेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द नॉन लिविंग स्पीशीज, वो उसको नॉन सपोर्ट उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो खुद एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है और जो भी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है. सो दैट इज वो सिस्टम जो एग्जिस्ट वहाँ पे कर, दैट इज ऑफ इट्स ओन विदाउट एनी this interference by the man. These are few examples of the terrestrial ecosystem, and this is here next जो second आपका आता है, that is the terrestrial, and another certainly will be the aquatic ecosystem. जो further जो है that is classified into further subgroups कौन आता है aquatic में, one it is the fresh water and another is the marine. जो आपका marine और the जो sea water आएगा that is which is highly saline, and fresh water जो हम usually use करते हैं for the different utilize करते हैं for different uses जो भी होते हैं, and it is of very less saline. उसमें कौन कौन सा फ्रेश वाटर में आपका आता है stream ecosystems बनेंगे, river ecosystems बनेंगे, pond ecosystem will be there, and certainly in marine it is included the very deep oceans आएंगे and the sea. Next is your the artificial or the man engineered. What will be the artificial ecosystem? Certainly these are manipulated by the man, ठीक है. For example हम क्या बनाते हैं cropland, या आपके you will check in your kitchen gardens, या हम कभी साग का कुछ ग्रो किया, टोमेटो का कोई फील्ड बनाया, ठीक है, या डिफरेंट क्रॉप्स लाइक द मेज बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, राइस कर रहे हैं, मगर वो कौन कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे जो भी कंडीशंस है, वेदर बायोटिक कम्युनिटी है या फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप पे हम क्या करते हैं, व्हाट इज क्रॉपलैंड यूजुअली जहाँ पे क्या होता है एक क्रॉप फील्ड बनाया, देयर इज द वन डोमिनेटिंग स्पीशीज. फॉर एग्जांपल मेज का हमने एक क्रॉप फील्ड बनाया क्रॉपलैंड, तो वहाँ पे क्या ग्रो हमने किया, मेज किया, बट कौन सी सिलेक्टेड पॉपुलेशन की, ह्यूमन सिलेक्टेड, हमने वहाँ पे इसको ग्रो किया, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी को हमने किया, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल हम दिख रहे हैं वहाँ पे कोई अनवांटेड वीड्स है, उनको हम प्लग करके डिस्कार्ड करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कौन इंजीनियर कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, सो वही ह्यूमन कंट्रोल से ये एग्जिस्ट कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है. एंड
वहाँ का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो भी वी विल ऑल्सो, या फिजिकल एनवायरनमेंट वी विल गिव टाइम टू वाटर, कब कब हमें वहाँ पे पानी चाहिए. सो एंड इन लेटर द केमिकल एनवायरनमेंट भी हम वहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द अल्टीमेट इम्पैक्ट, जो व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम, हमें क्या चाहिए, जो भी हम क्रॉपलैंड बनाते हैं द टारगेट इज हमें प्रोडक्शन फाइनली शुड बी वेरी हाई सर्टनली. सो व्हाट हैपन्स, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कभी लगता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, दो उतने नहीं सफिशिएंट है, वही क्या करते हैं, इसको वहाँ पे इसको करते हैं ऑगमेंट फर्दर वहाँ पे फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे इसमें इस फील्ड में ताकि प्रोडक्टिविटी और फर्दर इंक्रीज हो जाए. सो हम इसका केमिकल एनवायरनमेंट भी कंट्रोल कर रहे हैं. So these are the examples of the artificial ecosystem. And another, for example, your croplands are especially जो भी अब मेज फील्ड बनाएंगे, ड्राई फील्ड्स बनाएंगे, these are all the examples of the artificial ecosystems. वो इकोसिस्टम वहाँ पे बना कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने मेज ग्रो किया वहाँ किसी फील्ड में, वहाँ नीचे सॉइल में बैक्टीरिया माइक्रोबियल पॉपुलेशंस भी है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, सॉइल से क्या ले रहा है, आपका क्रॉप फील्ड जो भी मेज है वहाँ पे सॉइल से ले रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर से वहाँ पे. ठीक है, ऑक्सीजन ले रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स वो ग्रो हो गए, वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं. अब उससे जो फाइनली उसका डेथ हो रहा है या कुछ पार्ट्स गिर रहे हैं, तो वहाँ जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन वो उस पर सर्वाइव करे. सो एट दैट वेरी स्पार्शल स्केल हम देखेंगे, एट व्हाट स्केल जो हमने वो क्रॉप फील्ड बनाया उस स्पेस में बनाया, एट दैट वेरी स्पार्शल स्केल हम देख रहे हैं एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. किसका सिस्टम कर रहा है, ये जो हमने क्रॉप फील्ड सेलेक्ट किया विद दिस वेरी मेज, और वहाँ पे छोटे पॉपुलेशन है वो भी उसमें थ्राइव कर रहे हैं. कैसे और सपोर्ट ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स लिए फ्रॉम द सॉइल, या जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन है जो भी एटमॉस्फेयर से ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे फोटोसिंथेसिस में. सो देयर वन इकोसिस्टम इज रनिंग सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट इज, मगर यहाँ पे क्या है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दिस, इम्पैक्टेड बाय द एंड मैनिपुलेटेड बाय द मैन. सो देयर इज वन सिस्टम रनिंग, जो हमने मेज का क्रॉप लैंड देखा. सो दिस इज ऑल्सो द इकोसिस्टम जो आप अपने घर पे बनाएंगे, कहीं लार्ज फील्ड्स में क्रिएट करेंगे दीज क्रॉप लैंड्स. सो वहाँ टुगेदर आप देखिए बायोटिक जो नॉन कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड लेटर दे आर sustaining. So these are croplands are the example of this is also an ecosystem. This is example of the ecosystem, but what kind of the artificial ecosystem? Besides, for example, aquarium है, या for example aquarium is also an example. For example, artificially आप create करेंगे suppose in your home, that is also an artificial ecosystem. कैसे, आप उनको टाइम टू टाइम फूड दे रहे हैं, जो भी आपको फिश फूड है फीड उनको हम दे रहे हैं. ठीक है, फिशेस वहाँ पे है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और उनका टाइम टू टाइम हम क्लीनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी हार्मफुल एजेंट्स वहाँ क्रिएट हो जाते हैं वो रिमूव देम टाइम टू टाइम. एंड बट वहाँ पे एक सिस्टम रन हो रहा है, उनको फूड दे रहे हैं, जो फिशेस ले रहे हैं, पानी उनका चेंज करते हैं. सो वहाँ भी एक साइकिल रन हो रहा है, एक सिस्टम सस्टेन हो रहा है. Aquariums are also example of the artificial ecosystem. So in natural ecosystems, the nature maximizes for the gross production, whereas in the artificial one, man maximizes for the gross production. What is simply क्या होता है, you need to remember जो natural ecosystems है वहाँ पे कौन करता है, what is the focus, चाहे nature का भी है, that is what is there, the ultimate is always the gross means production means here you remember the photosynthesis. यानी photosynthesis means हमें हर फील्ड में हर सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द जो नेचुरल इकोसिस्टम्स टोटल प्रोडक्शन शुड बी हाई, यानी फोटोसिंथेसिस हाई होगा, प्लांट्स उतना फूड बनाएंगे, उतना डेवलपमेंट उतना जाएगा, फिर उनके लेटर क्रॉप से जो भी बॉडी मास है वो उतना ज़्यादा बनेगा, देयर विल बी द मोर प्रोडक्शन. ठीक है, सो इन केस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स जो नेचर है दैट मैक्सिमाइजेस फॉर द ग्रॉस प्रोडक्शन, यानी नेचर ऐसी कंडीशन सेट करता है देयर शुड बी द मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, उतने क्रॉप्स बनेगा, उतना यील्ड बनेगा, दैट इज वी सी ग्रॉस इज द टोटल, उतना प्रोडक्शन ऑब्वियसली विल बी द हाई. यानी जो नेचर है वो भी फेवर करता है ऑब्वियसली फॉर द पॉजिटिव थिंग. एंड व्हाट इन केस ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में वी ह्यूमंस वहाँ पे क्या हम करते हैं, व्हाट इज द एम, व्हाट इज एट द सेंटर देयर. इन केस ऑफ द जो भी हमारे जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनेंगे, सर्टेनली यहाँ कौन करेगा, टारगेट किसका है, मैन का क्या है, देयर शुड बी द मैक्सिमम हाई यील्ड प्रोडक्शन, और जो भी हमारा क्रॉप, यानी हम जो भी मैनिपुलेट करते हैं इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, व्हाट इज द रीजन, ताकि हमें वीड्स रिमूव कर रहे हैं, फर्टिलाइजर फर्दर ऐड करें, ताकि जो ओवरऑल ग्रॉस प्रोडक्शन है दैट शुड बी द मैक्सिमम, यानी वहाँ पे फील्ड का होना चाहिए, दैट इज हाई. यानी नेचुरल में कौन कर रहा है, नेचर खुद कर रहा है, बट इन केस ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हम उस पर हम इंटरफेयर कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ऑफ दैट वेरी फील्ड. Simply you need to remember natural is the one जहाँ कोई मैनिपुलेशन ह्यूमन का नहीं, जो नेचुरली खुद एग्जिस्ट हो रहा होगा, एंड द आर्टिफिशियल इज द वन जहाँ पे क्या है, ह्यूमंस आर मैनिपुलेटिंग